आइए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन मिलता है भजन संहिता 29, 1 और 2। Psalm 29 verses 1 and 2। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। Ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. आमीन। Amen. आप देखें वो 80 में जो है वो है प्रभु का वचन, प्रभु की आराधना। इस भजन के पहला पद और आखिरी पद जो है वहाँ लिखा है गॉड इज पावरफुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे परमेश्वर ना कर सकता हो। लॉर्ड कैन डू एवरीथिंग। आप देखें जो यहाँ लिखा है वो है उसकी आराधना करो। भजन 4 में उसके 6 में क्या लिखा है? Psalm 96 verse 6. Splendor and majesty are before him. Strength and glory are in his sanctuary. आप देखें रेवलेशन 4:8-11 है। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 8 से 11 पद। Revelation 4 verses 8 to 11. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. आमीन। Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Amen. आप देखें एंजल्स वर जॉइंड बाय 24 एल्डर्स। ये है स्वर्ग का दृश्य। आप देखें रेवलेशन 4:1-13 में क्या लिखा है? Philippians 4:13. Yeah? नहीं, रेवलेशन 4:11-13 Okay. Revelation 4 verses 1 to 3. After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard, speaking to me like a trumpet, said, Come up here, and I will show you what must take place after this. At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. And the one who sat there had the appearance of jasper and ruby. A rainbow that shone like an emerald encircled the throne. वो शुड बी सेंटर ऑफ एवरी बिलीवर। हर एक विश्वासी के लिए दुनिया की जो आराधना है वो उसका स्थान उसके जीवन में महत्वपूर्ण हो। आप देखें पदों में क्या लिखा है? पद 2 में लिखा है Psalm 29 verse 2. It says, Ascribe to the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। आमीन। आप देखें जो बिलीवर के जीवन में जो आराधना है उसका है पहला स्थान। आप देखें ये बात कही गई है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 31 पद। 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.
प्रभु की महिमा के लिए करो। आप देखें लेविटिकस चैप्टर 28:36। एक्सोडस 28:36। या निर्गमन 28 उसका 36वां पद, एक्सोडस 28:36। Make a plate of pure gold and engrave on it as on a seal, holy to the Lord. Holy to the Lord। वो यहोवा के लिए पवित्र है। Yeah. आप देखें First Chronicles है। पहला क्रॉनिकल्स 16:29। Yeah. First Chronicles 16:29, पहला इतिहास 16:29। Ascribe to the Lord the glory due his name, bring an offering and come before him, worship the Lord in the splendor of his holiness. आप देखें ईसाया उसका 6 अध्याय उसके 3 पद में। Isaiah chapter 6 verse 3, and they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty, the whole earth is full of his glory. Amen. कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। आप देखें इस वक्त राजा उज्जिया मरा, उस रात मैंने परमेश्वर को उसके परम प्रधान सिंहासन में देखा। विराजमान देखा। आप देखें जो वो है महिमा है, वो भरी हुई थी उसकी। जी। आप देखें अजाय के जीवन में जो था महत्वपूर्ण क्रांतिकारी वर्णन। आप देखें जो यहोवा है वो है अपने सिंहासन में विराजमान। उसमें जो दृश्य था व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट। आप देखिए उज्जै राजा ने बहुत साल तक राज्य किया, लोग थे स्केप्टिकल थे इसके बाद क्या, लेकिन लोग आते हैं जाते हैं, राजा आता है जाता है, सरकारें आती हैं जाती हैं, एक बात जो विद्यमान रहती है वो है परमेश्वर अपने सिंहासन में है। आप अपने जीवन में कभी किसी उद्योग में हो, बीमार हो, परेशान हो, कंगाली में हो, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, अपने सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। आइए उसकी पवित्र सुभायमान और उसकी आराधना करें, प्रभु को सराहें। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है हमारे जीवन में प्रभु आप अपनी पवित्रता का एहसास दें, हमें वो ताकत दें ताकि हम अनुभव कर सकें। महिमा गौरव आपका है, प्रधानता आपकी है, आप हमेशा तक रहेंगे। हमारी प्रार्थना को आप सुन लें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद, परमेश्वर मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता, परमेश्वर यीशु का अनुग्रह हमें हर एक के साथ बना रहे। आमीन आमीन।